Ready to begin today's session? All of you come in a comfortable posture. એક comfortable posture માં આવો. પ્રાર્થનાથી શરૂ કરશું. બંને હથેળીને આપસમાં જોડો. નમસ્કાર મહામુદ્રા લેવાની છે. જે પહેલી વાર કરતું હોય જુઓ. બંને હથેળીને તમારે આ રીતે રાખવાના છે અને થોડો પ્રેશર આપવાનું છે. તમારો આ બગલનો એરિયા ખુલ્લો રાખો. અંગૂઠાથી જો તમારા હાર્ટ ચક્રને ટચ કરી શકો તો એ રીતે, નહીતર આપણે અંગૂઠો આમ ફોલ્ડ કરીને આ નમસ્કાર મહામુદ્રા લેવાથી આપણી પ્રાણ શક્તિ સમાનપણે વહેવા માંડે છે. મેરુદંડ સીધું રાખજો, ગરદન સીધી, આંખોને કોમળતાથી બંધ રાખો અને નમસ્કાર મહામુદ્રામાં બેસો. સમપ્રાણ સમસ્થિતિમાં પૂરી રીતે તમારું ધ્યાન તમારા શ્વાસોશ્વાસ પર લો. શ્વાસ ભરો અને છોડો. ઊંડો શ્વાસ ભરો, ધીરે ધીરે છોડો. કોઈ પણ કાર્ય કરતા પહેલા મનને શાંત કરી શ્વાસોશ્વાસથી જોડવાની આ પ્રક્રિયા કરતા આપણું મન સતેજ થઈ જાય છે, શાર્પ થઈ જાય છે, એટેન્ટિવ થાય છે અને આપણી ગ્રહણ શક્તિ વધી જાય છે. શ્વાસોશ્વાસ આપણને આપણા મન સાથે જોડે છે, અંતર્મનની ગહેરાઈઓથી જોડે છે. અને પરમાત્મા સાથે પોતાની જાતને જોડવા માટે ચેતન મનથી જોડાઈ નથી શકાતું. અંતર્મનની ગહેરાઈથી જ આપણે પરમાત્મા સાથે પોતાની જાતને જોડી શકીએ છીએ. અને એટલે પણ શ્વાસોશ્વાસ પર ધ્યાન લેવું બહુ જરૂરી છે. શાંત થઈ જાઓ. વચન મૌન, શરીર શિથિલ, મન પણ શાંત. અંતર્મનની ગહેરાઈઓથી હવે પંચ પરમેષ્ઠી પરમાત્મા સાથે આપણે જોડવાનું છે પોતાની જાતને. નમો અરિહંતાણમ, નમો સિદ્ધાણમ, નમો આયર્યાણમ, નમો વજ્રાયાણમ, નમો લોએ સવસાહુણમ, એસો પંચ નમોકારો સવ પાવપણાસણો, મંગલાણમ ચ સવેસિમ, પડમં હવૈ મંગલમ. અરિહંત સિદ્ધ આચાર્ય ઉપાધ્યાય સાધુ આ પાંચ પરમેષ્ઠી પરમાત્માની ઉર્જાઓનું આવાહન કરીએ. શરીરની તંદુરસ્તી, મનની શાંતિ અને આત્માની ઉન્નતિ માટે આપણે આ વર્કશોપ કરી રહ્યા છે. આપણું ઇન્ટેન્શન બહુ ક્લિયર છે. સંપૂર્ણ સજગતા સાથે આ વર્કશોપને કરવાનું છે. પૂર્ણ મૌન, શરીર શિથિલ અને અંતર્મનની જાગૃતિ સાથે
અહીંયા બોલાયેલા હર શબ્દને સુનવાના છે, સાંભળવાના છે. દરેક શબ્દને સાંભળવાનો છે સંપૂર્ણ સજગતાથી. ભીતર ગ્રહણ કરવાનું છે. આ વર્કશોપમાં જે ઉત્તમ પોસિબિલિટીઝ હોય એ આપણા સૌ સાથે થાય એવી પરમાત્માને પ્રાર્થના કરતા બંને હથેળીને આપસમાં રગડો. એનર્જીને આંખો અને ચહેરા પર લો અને ધીરે ધીરે આનંદની અનુભૂતિ સાથે આંખો ખોલો. હું ફરીથી એકવાર રિક્વેસ્ટ કરીશ કે સૌ પોતાનો વિડીયો ઓન રાખો. આ વર્કશોપને પૂર્ણ ગંભીરતાથી કરવાની कोशिश करो. यहाँ कोई ऐसा है जिसको गुजराती नहीं आता है और हिंदी बोलना है, अपना हैंड रेज करे प्लीज. अगर आप हिंदी ने गुजराती नहीं समझ पा रहे हैं तो मैं हिंदी में बोलूंगी. क्योंकि रिक्वेस्ट गुजराती की आई है तो आई एम जस्ट आस्किंग. आई एम टर्निंग द पेजेस. आई एम सीइंग Mitanshi, it's lovely to see you after a very long time. Hi. Pranam Uncle Ji. I thank you for being present here. Not being Jain, you are attending this. Hello Nilima Ji, namaste. Welcome. So, पर्युषण महापर्व शुरू हुए हैं. दुनिया में जब भी कोई पर्व की बात होती है, फेस्टिवल की बात होती है, तो एक फेस्टिव मोड बोलते हैं. तो क्या करना है फेस्टिव मोड में? तैयार होना है, अच्छे अच्छे कपड़े पहनने हैं, लोगों को मिलना है और खाना पीना है और मजे करने हैं, है ना. वेराइटीज ऑफ फूड खाना है और मजे करने हैं. जनरली फेस्टिव मोड ऐसा ही होता है, राइट. फेस्टिवल हम इस तरह से ही मनाते हैं. सो यहाँ 2 लोगों ने हाथ ऊपर किए हैं, सो दैट इज व्हाई आई एम ट्राइंग. या ओके अर्चना जी, नो प्रॉब्लम. सो आई एम ट्राइंग कि मैं ज्यादा गुजराती में हिंदी में बोलूं. अगर किसी को दिक्कत है, हिंदी नहीं समझ में आई, तो प्लीज आप अपना हैंड रेज करें और बोले मुझे, तो फिर मैं वो चीजें गुजराती में ट्रांसलेट करूंगी. मुझे लगता है सभी को हिंदी तो आती ही होगी, राइट. तो हम हिंदी में ही करने की कोशिश करेंगे. सो पर्व यानी मजे करने के दिन होते हैं, लेकिन जैन शास्त्र एक ऐसा पर्व लाता है जहां आत्मिक उन्नति के लिए काम करना है. काम तो करना ही है, लेकिन गंभीरता से करना है. आत्मा की प्रगति के लिए, आत्मा की उन्नति के लिए सब लोग हमेशा रोज करते ही होंगे. मंदिर जाते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं, कोई रिचुअल्स करते हैं, कस्टम्स करते हैं. लेकिन पर्युषण महापर्व हमारे लिए गंभीरता से काम करने का संदेश लेकर आता है. क्या काम करना है? हमें आत्मिक लेवल पे काम करना है कि ये पर्युषण महापर्व में हम जो कुछ भी करें वो हमारे लिए भव का भाता बन जाए. अगले भवों में हम इस पुण्य राशि इकट्ठा करके ले जाएं, तो इस जन्म में जो मिला है वो सब कुछ और उससे ज्यादा हमें अगले जन्म में मिले. हमको जो कुछ भी मिलता है, चाहे वो संसारिक चीजें हैं, चाहे उत्तम मनुष्य जन्म है, चाहे उत्तम धर्म है, उत्तम समझ है, ज्ञान है, सब कुछ पुण्य राशि से मिलता है. और इसीलिए पर्युषण महापर्व ऐसी पुण्य राशि इकट्ठा करने के दिन है कि हम अगले जन्म में ये भाता हमारे साथ लेकर जाएं. तो क्या सिर्फ पुण्य राशि इकट्ठा करने का ही आध्यात्मिक कार्य करना है? तो एक और कदम आगे बढ़ता है जैन शास्त्र और कहता है कि हमें पुण्य राशि से ऊपर उठकर सोचना है
और ध्यान कायोत्सर्ग की ऐसी साधना करनी है जो हमारे सारे कर्मों को खत्म करने में मदद करे, कर्म ही खत्म हो जाए। अब पुण्य राशि भी कर्म है, मानते हैं आप सब, जानते हैं। थोड़ा अंगूठा ऊपर करे, थोड़ा, आई नो मैंने आप सबको म्यूट में डाला है, बहुत सारे लोग हैं, तो अगर कोई विंडो खोलता रहेगा तो डिस्टर्ब होते रहेंगे। तो दैट इज वाई आपको सिर्फ इशारों से बात करनी है मेरे साथ। पुण्य राशि भी कर्म है, राइट? और कर्म अटकाता है ना भव भ्रमण में, चाहे वो पाप है या पुण्य है, वो हमको भव भ्रमण में भटकाएगा। तो इसीलिए जैन शास्त्र बात करता है कर्म की कंप्लीट निर्जरा की। अब देखिए, कोई भी धर्म इस संसार में जो है, सारे धर्म अच्छे ही हैं, अच्छाई के लिए ही बात करते हैं और एक जीवन जीने की समझ देते हैं। तो यहाँ मैं बार बार जैन धर्म का और जैन धर्मों से कनेक्टेड शब्दों का इस्तेमाल करूंगी। आप में से बहुत लोग मेरे वर्कशॉप्स कर चुके हैं, मिराज 2 ओएसिस किया है या अंतर्मुख किया है, तो आप जानते हैं कि मैं सब कुछ यूनिवर्सल रखती हूँ, क्योंकि ये वर्कशॉप सब जाति के लोग करते हैं। और सच्चाई तो यूनिवर्सल है ना, स्पिरिचुअलिटी तो यूनिवर्सल है, आध्यात्मिक यूनिवर्सल है। आध्यात्मिक दृष्टि कभी भी कोई एक पर्टिकुलर धर्म से जुड़ी हुई नहीं हो सकती, वो इतनी नैरो नहीं हो सकती, वो बहुत ब्रॉड है आध्यात्मिक दृष्टि। तो सब जाति के लोग करते हैं मेरे पास वर्कशॉप, तो वहां पे मैं सब कुछ यूनिवर्सल लैंग्वेज में बात करती हूँ। लेकिन ये पर्टिकुलर भाव धर्मोन्मूल जो वर्कशॉप है, ये पर्टिकुलर चीज सिर्फ हम पर्यूषण के वक्त करते हैं, और पर्यूषण के वक्त करते हैं, और इसीलिए उसको सिर्फ जैन शास्त्र से जोड़ा है मैंने। हालांकि बातें सारी यूनिवर्सल ही होगी, जो नॉन जैन है यहाँ पर वो भी पूरी तरह से कनेक्ट हो पाएगा इन बातों से, लेकिन मैं जैन धर्म का उल्लेख बार बार यहाँ करूं। तो जैन धर्म ऐसा धर्म है जो कोई आडंबर और क्रियाकांडों में ही नहीं अटका हुआ। जैन धर्म एक्चुअल में देखा जाए तो दो ही बातें करता है। एक, आपको अपनी आत्मा की उन्नति करके मोक्ष में जाना है, यानी कंप्लीट लिबरेशन की बात होती है यहाँ। आपको किसी यूनिवर्स के अंदर से निकले हैं और उसमें समा जाना है, ऐसा नहीं कहता है। आपके आत्मा के मुक्ति की बात करता है, कंप्लीट मुक्ति की बात करता है। जैन धर्म ही एक ऐसा धर्म है जो कहता है कोई एक भगवान, कोई एक शक्ति नहीं है। जैन धर्म कहता है हर आत्मा परमात्मा बन सकती है, हर आत्मा परमात्मा बन सकती है। एवरी बीइंग कैन बी अ गॉड बीइंग। और जैन धर्म ये रास्ता सिखाता है, रास्ता दिखाता है कि आत्मा से परमात्मा बनना है। तो एक कोई भगवान में मानता ही नहीं जैन धर्म। तो जैन धर्म एक्चुअली देखा जाए तो नास्तिकों का धर्म है, आस्तिकों का धर्म ही नहीं है, नास्तिक लोगों का धर्म है, क्योंकि भगवान में नहीं मानता जैन धर्म। जैन धर्म कहता है कि हर आत्मा जब वो अपनी साधना करता है तो वो मुक्त हो सकता है, लिबरेट हो सकता है, परमात्मा बन सकता है। तो फिर हम 24 तीर्थंकरों में मानते हैं, उनकी मूर्तियां बनाते हैं, मंदिरों में स्थापित करते हैं और मंदिरों में जाते हैं। हम करते हैं ना, देरावासी लोग सब कुछ करते हैं, श्वेतांबर दिगंबर लोग सब कुछ करते हैं, स्थानकवासी नहीं करते। तो ये कैसे? हम तो भगवान मानते हैं ना 24 तीर्थंकरों को। तो देखिए, भगवान इस मानी में नहीं मानते हैं हम कि वो कोई भगवान है, उसको हम उसकी स्तुति करें, उसको खुश रखें, उसकी सब पूजा करें, अर्चना करें ताकि वो खुश हो या हमें आशीर्वाद दे दे और हमें उनके पास बुला ले। हम इसलिए नहीं करते हैं। हमें परमात्मा की स्थापना इसलिए करनी है कि हमारे सामने एक अफर्मेशन रहे, एक गोल रहे, एक ध्येय रहे कि हमें कहाँ पहुंचना है।
तो बार बार हमें अपने मन को ये ध्येय दिखाना है, बार बार ये गोल याद कराना है और बार बार अफर्मेशन करना है, उनके जैसा मुझे बनना है, उन्होंने जो किया वो सब कुछ करना है, उनके जैसी साधना करनी है और मुक्ति के रास्ते पर चलना है। और इसीलिए हम भगवान की स्थापना करते हैं, ना कि इसलिए कि वो एक पावर है जो पूरी दुनिया चलाता है, इसलिए उस पावर को हमारा नमन करते रहना और उसको खुश रखना है। No, that's not the perspective. So please understand Jain perspective of having Paramatma, Murti, Mandir and Sthapna. There is a lot of difference. ये जब हमको समझ में आ जाता है ना, तो एक बात समझ में आती है कि मेरा मुक्ति का रास्ता मुझे ही चलना है, कोई और मुझे अपनी कृपा करके ऊपर नहीं ले सकता। हर एक को अपना रास्ता खुद चलना है। और जैनिज्म जो साधनाएं बताता है, बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात है, बहुत ध्यान से सुने इस बात को। हर साधना सिर्फ दो चीज बताती, एक संवर करो और दूसरी निर्जरा करो। ये नव तत्व का हिस्सा है। हमारा टॉपिक इस बार सामायिक प्रतिक्रमण रखा है हमने, तो मैं नव तत्व को बहुत डिटेल में नहीं लूंगी। मुझे लगता है पहला भाव धर्म को मूल जब 2 साल पहले हमने किया, ये थर्ड सीजन बोल सकती हूँ, हम सब सीजन समझते हैं अब नेटफ्लिक्स वगैरह देखकर। तो सीजन, दिस इज अ थर्ड सीजन ऑफ भाव धर्मनुमूल। इसके पहले 2 सीजन हो चुके हैं। फर्स्ट सीजन में हमने बात की थी नव तत्व के बारे में, सेकेंड सीजन में हमने बात की थी 18 पापस्थानक के बारे में, और इस सीजन में हम बात करने वाले हैं सामायिक प्रतिक्रमण के बारे में। लेकिन ये सीजन सामायिक प्रतिक्रमण को मुझे नवकार मंत्र से जोड़ना होगा, क्योंकि सामायिक प्रतिक्रमण को मैं नवकार मंत्र से जुड़े बगैर आपको बता नहीं पाऊंगी। तो मोस्टली वी विल बी हैविंग 5 days this time. In 8 days probably we will be able to do only 5 days. तो ये 5 दिनों में मैं आपको सामायिक प्रतिक्रमण और नवकार मंत्र इन तीनों से जोड़ना चाहती हूँ। और ये जो तीनों में जोड़ेंगे हम, उसमें मूल भाव यही रहेगा कि कर्मों की निर्जरा कैसे करें, क्योंकि जैन धर्म एक ही बात करता है कि आपको आत्मा से परमात्मा बनना है, तो मोक्ष में जाना है, लिबरेट करना है अपने आप को, तो आपको पूरे कर्म की निर्जरा करनी है। और जैन धर्म का हर एक धर्मानुष्ठान जो अनुष्ठान करते हैं हम, मतलब जो भी क्रियाकांड कर रहे हैं, मतलब हम अष्टप्रकारी पूजा कर रहे हैं, मंदिरों में जा रहे हैं, चैत्य वंदन कर रहे हैं, या हम सामायिक प्रतिक्रमण जो कुछ भी करते हैं, सब कुछ सिर्फ कर्म निर्जरा के लिए है। कोई भी धर्म अनुष्ठान पुण्य राशि बांधने के लिए नहीं होती, बाई प्रोडक्ट की तरह पुण्य राशि बंध जाती है, वो अलग बात है। लेकिन हम पुण्य राशि के लिए कोई कर्म नहीं करते, कोई क्रियाएं नहीं करते, क्योंकि कर्मों से ही मुक्त होना है हमको। तो जैन धर्म का हर अनुष्ठान क्लेंजिंग प्रोसेस है। क्या प्रोसेस है? क्लेंजिंग। क्या क्लीन करना है? तो बताते हैं कि हमको आत्मशुद्धि करनी है। लेकिन मैं एक बात आपको ये बताना चाहती हूं कि आत्मा तो हमारा शुद्ध ही है, अनंत ज्ञान दर्शन चारित्रधारी शुद्ध परिशुद्ध है हमारी आत्मा ऑलरेडी। तो हम आत्मा की शुद्धि क्यों करेंगे? और अगर आत्मा शुद्ध है तो हमारा मोक्ष हो जाना चाहिए। तो प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम शरीर शुद्धि करने में है। नहा धो के पूजा के कपड़े पहन के जाना है, वो तो बहुत आसान है, आराम से कर सकते हैं एवरीडे, राइट?
तो ना हमें शरीर शुद्धि पे ध्यान देना है और ना ही आत्म शुद्धि पे। ये कैसी बात है कि एक सूर्य तप रहा है, पूरे इसमें खिला हुआ उदय हो चुका है उसका, और पूरा प्रकाश फैल रहा है, और उसके बीच में बादल आ गए, बहुत सारे बादल आ गए। तो हम बोलेंगे कि भाई अब तो हमको सूर्य में तेज डालना पड़ेगा, क्योंकि सूर्य का तेज नहीं रिसीव कर रहे हैं ना, तो सूर्य में तेज डालना पड़ेगा। सूर्य के ऊपर कुछ कचरा लग गया, उसको साफ करना पड़ेगा, उसमें तेज डालना पड़ेगा, तब जाके हमें रोशनी मिलेगी। आत्मा को शुद्ध करना मतलब हम वैसी बात कर, हमको आत्मा शुद्धि नहीं करनी है। आत्मा तो परिशुद्ध ऑलरेडी है, उसकी शुद्धि को उजागर करना है। तो मैल कहाँ चढ़ा हुआ है? मैल चढ़ा हुआ है मन के लेवल पर, न शरीर के न आत्मा के। शरीर आप कैसा भी लेकर भगवान के पास चले जाएं, कबीरदास जी, रहीमदास जी जैसे फकीर लोग मैले कपड़ों में, मैले शरीरों में चले जाते थे, और फिर भी परमात्मा उनका आलिंगन कर लेते थे। ऐसा कहते हैं, नरसिंह मेहता करके एक फकीर हो गए, ऐसा कहते हैं कि जब उनका अंत समय आया, मतलब वो वैसे ही कैसे रहते थे, कपड़े उनके जैसे तैसे मैले, पता नहीं दिनों से नहाए कि नहीं नहाए, पर भक्ति में लीन रहते थे। तो कहते हैं कि जब उनका अंत समय आया ना, तो वो कृष्ण मंदिर में गए और कृष्ण को बोला, बस अब इस ड्रामा से मन उब गया, मुझे अपने पास ले ले। और कृष्ण की मूर्ति में उनका शरीर समा गया। हम तो सिर्फ पूजा करने की बात कर रहे हैं, पूरा का पूरा ये गंदे कपड़े वाला नहाए धोए थे कि नहीं पता नहीं, वो शरीर मूर्ति में समा गया। तो आप समझ रहे हैं शरीर शुद्धि का क्या महत्व है, और आत्मा शुद्ध करना नहीं है। तो जो करना है प्रॉब्लम मन शुद्धि में है, क्योंकि मन ही में सारे विकार जागते हैं। हमको सर्व विकारों से रहित होना है। सारे कर्मों की रज जो है वो मन लेकर चलता है। तो मन शुद्धि करते ही मन का अस्तित्व ही खत्म हो जाता है। फिर अब रह गया शरीर और आत्मा। जितना आयुष्य बाकी है उतना वो शरीर खत्म करता है, और आत्मा उजागर होते ही मुक्त हो जाता है। तो पूरा खेला जो है मन शुद्धि का है। और जैन शास्त्र सिर्फ यही बात करता है कि तुम सिर्फ शुद्धिकरण करो, तुम मुक्त हो। तो हर क्रिया शुद्धिकरण की बात करती है। सामायिक प्रतिक्रमण जो हमें करना है, हम जिस तरह से अभी कर रहे हैं, नहीं करने से ये करना अच्छा है। शुरुआत वहीं से होती है। तो सामायिक के लिए हम क्या करते हैं? तो बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारे पास कटाक्ष ना हो, चरवला हो, मुपत्ति हो, और हम सारी विधि विधान करें, और फिर सामायिक में बैठ जाए। सामायिक लेते हैं जब, तब सबसे महत्वपूर्ण जो सूत्र बोलते हैं वो है करेमि भन्ते, राइट। हम बोलते हैं करेमि भन्ते सामाय्यम सावजम जोगम पच्चकामी। जोगम पच्चकामी पहले ही लाइन में बोलते हैं कि अब सारे संसार का त्याग, और मैं जोग ले रहा हूं, साधु बनने जा रहा हूं, देशवीरति से सर्ववीरति में आ रहा हूं। ये शब्द जानते हैं, देशवीरति सर्ववीरति। देशवीरति यानी थोड़ा बहुत छोड़ना, सर्ववीरति यानी सब कुछ छोड़ना, त्याग की भावना में आना। तो संसार छोड़कर मैं आ रहा हूं। अब मैं संसार कैसे छोड़ूंगा? तो मैंने सब कुछ छोड़ दिया और मैं कटाक्षने पे बैठ गया। तो मैंने अपना शरीर की दिशा बांध ली, उतना सा प्रदेश, इतना सा हमारा कटाक्षना होता है, उस पे बैठ जाना, बस उतना ही मुझे स्पेस यूज करना है। टाइम भी बांध लिया हमने,
48 मिनट्स के लिए। नाउ आई एम कमिंग इनटू सर्ववीरती। उसके बाद बस शरीर को बिठा दिया, कर लिया तो हो गया सामायिक। आगे क्या बोल रहे हैं? मन दंड, वचन दंड, काय दंड परिहरु। मन गुप्ती, वचन गुप्ती, काय गुप्ती आदरु। भूपति के बोल में बोलते हैं ये। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ना मैं अब वचन से कुछ करूंगा, बोलूंगा, ना मैं शरीर से कुछ करूंगा। गुप्ती यानी मैंने ले लिया अंदर, और ना ही मैं मन से कुछ करूं। अब हम क्या करते हैं? चलो वचन को शायद मौन कर लिया, शरीर को भी मौन कर लिया। ज्यादातर लोग सामायिक में वो भी नहीं करते हैं। ज्यादातर लोग कुछ पढ़ते हैं, कुछ नौकार वाली गिनते हैं। तो चलो संसार की बातों से मन मुंह बंद कर लिया, संसार की कोई बात नहीं करेंगे, और शरीर से भी संसार का कोई कार्य नहीं करेंगे। तो नौकार वाली गिनेंगे या कुछ पढ़ेंगे। तो ये सब भी साधना है, लेकिन उत्तम साधना तब होगी जब मन गुप्ती होगी। मन गुप्ती यानी दैट इज 97%। ओके, ये काय गुप्ती और वचन गुप्ती दोनों मिलाकर 3%। तो 3% ही सामायिक लिया है अभी तक। जब मन गुप्ती करेंगे तो 100% सामायिक बनेगा। तो मन गुप्ती करना यानी क्या करना? मन को संपूर्णतः शांत कर लेना। मन में 48 मिनट्स तक, संगीता जी 48 मिनट्स तक एक भी थॉट नहीं आना चाहिए। और यहाँ साइंस कहता है, आप मेरे जैसे लोग, साइंस कह रहा है, महावीर स्वामी भगवान ने तो बहुत कुछ कहा, लेकिन आज साइंस कह रहा है अपने इंस्ट्रूमेंट से जो थोड़ा बहुत पकड़ पा रहा है, कि आप और मेरे जैसे लोग 1 मिनट में 35 से ज्यादा विचार करते हैं। 35 से ज्यादा 1 मिनट में, 60 मिनट में कितने हो गए? तो उतने ही विचार अगर हमने किए तो कहाँ हुई मन गुप्ती? और ज्यादातर लोग तो 35 से ज्यादा और सामायिक लेके और ज्यादा कर सकते हैं। सामायिक नहीं है तो बहुत सारी चीजों में बिजी हैं, कुछ कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो शायद विचार कम आ रहे हैं। सामायिक में बैठ के सारे विचार और डबल हो जाते हैं। तो मन गुप्ती तो हो ही नहीं रही है, और मन गुप्ती नहीं हो रही है तो 97% सामायिक नहीं हो रहा है, 3% सामायिक हो रहा है। अब 97% सामायिक नहीं करेंगे तो संवर और निर्जरा की तो बात ही नहीं हुई। संवर वही बोल रहा है कि आंखें बंद करके बैठकर क्या संवर करना है। मन के अंदर जो 1 मिनट में 35 से ज्यादा आश्रव चल रहे हैं। आश्रव यानी इनकमिंग मैसेजेस। आपका व्हाट्सएप चालू रहता है तो टंग 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 गिरते रहता है, राइट? फिर आप उसको साइलेंट कर लेते हैं कि ये बार बार टंग टंग कर रहा है। साइलेंट कर लिया तो मैसेज नहीं आए, मैसेज तो गिर ही रहे हैं कंटिन्यूअस, उसको आश्रव बोलते हैं। मतलब कंटिन्यूअस अगर विचारधारा चालू है तो वो टंग 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 आश्रव चालू है, उसको संवर करना है, रोकना है। सामायिक में संवर की साधना है वो। कई और जैसे हम डेरावासी, स्थानकवासी, दिगंबर सब लोग यहाँ इकट्ठा होंगे। यहाँ तो नॉन जैन भी बैठे हैं, तो जैन तो आई होप कि सारे बॉर्डर्स तोड़ के यहाँ आए हैं। ऐसा नहीं है कि मैं स्थानकवासी हूं तो मैं मनीषा जी का भाव धर्म मूल नहीं कर सकता। आई होप ऐसा कोई नहीं सोच रहा है। तो ये जो सारे बॉर्डर्स हैं, स्थानकवासी लोग सामायिक को संवर की साधना बोलते हैं, बोलते ही मुंह से संवर की साधना करने बैठे। तो संवर करना पड़ेगा ना। और ये संवर शरीर का और मन का, वचन का कर लिया, मतलब काया और वचन का हो गया। काय गुप्ती हुआ, शरीर को ऐसे स्थिर करके बैठ गए तो काय गुप्ती हुआ। मुंह को बंद कर लिया, मौन कर लिया तो वचन गुप्ती हुआ। लेकिन मन गुप्ती
और सारा खेला वही चल रहा है, सारा खेला संसार का वही चल रहा है। तो अगर आप सीरियसली चाहते हैं कि ये संसार छूटे, हमारा, हमारी मुक्ति हो, कहीं हम इस संसार को छोड़े, तो मन गुप्ती करना शुरू करना पड़ेगा। तो बोले भाई हम आंख बंद करते हैं ना तो बहुत ज्यादा और ज्यादा विचार आते हैं, घबराहट होती है, उससे अच्छा है कि हम नौकार वाली में मन लगा दो। अब हमारा मन बहुत स्मार्ट है, वो क्या करता है, जैसे ही आपने नौकार गिनना शुरू किया ना, पहले नौकार में आपका पूरा ध्यान, दूसरे नौकार में थोड़ा 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 ध्यान छूटना शुरू होता है, और 10वें 15वें नौकार तक पहुंचते पहुंचते मन क्या करता है, स्मार्टली अपना एक हिस्सा उस काम में लगा देता है और बाकी के काम फिर वापस सोचना शुरू कर देता है। जैसे हमारा कंप्यूटर बहुत, हमारे मोबाइल बहुत स्मार्ट है ना, एक हिस्सा हमारे ईमेल को डाउनलोड करता रहता है, अंदर आने देता है, एक हिस्सा व्हाट्सएप मैसेज को आने देता है, तो ये सब चालू है, फिर भी एक हिस्सा फोन कर सकता है, राइट। एक हिस्सा फोन का, उसमें हम बात कर सकते हैं। जब हमारा फोन चल रहा है, हम फोन में बात करते हैं, तब आपके व्हाट्सएप मैसेज नहीं आते हैं? आते हैं ना। एग्जैक्टली लाइक दैट अवर माइंड वर्क्स। तो माइंड क्या करता है, एक हिस्से को हमारी, हम जो स्वाध्याय कर रहे हैं उसमें लगा दिया। स्वाध्याय एक्चुअली उसका भी मतलब हमको बहुत डीपली समझना है, धीरे धीरे इन 5 दिनों में सारे शब्दों के रहस्य खुलते जाएंगे। लेकिन स्वाध्याय मतलब सोचते हैं कि कुछ पढ़ रहे हैं, तो स्वाध्याय कर रहा है तो एक हिस्सा स्वाध्याय करने लगता है, फिर मन भटकने लगता है। एक हिस्सा नौकार वाली गिन रहा है, फिर मन भटकने लगता है, तो मन गुप्ती हो नहीं रही है। और जब तक मन गुप्ती हो ही नहीं ना, तब तक हमारे सामायिक की शुरुआत ही नहीं हुई। और सामायिक मतलब क्या, समता की प्रैक्टिस करना। आयाम यानी एक तरह के एक्सरसाइज, आयाम व्यायाम जो बोलते हैं ना, इट मीन्स एक्सरसाइज। तो सामायिक की एक्सरसाइज, सामायिक में क्या एक्सरसाइज करनी है, समता की आयाम, समता का आयाम करना है, सम आयक यानी समता की, समभाव में रहने की प्रैक्टिस, समभाव में रहने की प्रैक्टिस करना, इसको बोलते हैं सामायिक। समभाव में कहाँ रहना है, हाथ और पैर में समभाव नहीं क्रिएट करना है। समभाव कहाँ क्रिएट करना है, भाव कहाँ क्रिएट होते हैं, हाथ में पैर में क्रिएट होते हैं। भाव वचन में क्रिएट होते हैं, वो प्रोजेक्ट होते हैं। हम जिस भाव से, जो भाव मन में क्रिएट करते हैं ना, हमारे शब्दों में प्रोजेक्शन होता है उसका। आप अगर गुस्से के भाव में हो तो आपके शब्दों में प्रोजेक्शन आता है, आप इरिटेटेड हो तो शब्दों में प्रोजेक्शन आता है। लेकिन वो इरिटेशन होता कहाँ है, वो गुस्सा आ कहाँ रहा है, ये सब तो मन का खेला है ना, मन में चल रहा है। तो समता कहाँ क्रिएट करनी है, मन में क्रिएट करनी है। अब मन किस चिड़िया का नाम है वही पता नहीं, मन है कहाँ वही पता नहीं, तो हम समता का भाव क्रिएट कैसे करेंगे, प्रैक्टिस कहाँ करेंगे। मन गुप्ती किए बिना प्रैक्टिस हो नहीं सकती। सामायिक ठाणेनम मोणिनम झाणेनम अप्पाणम वोसिरम, ये बोलते हैं हम। ठाणेनम शरीर को स्थिर करना, मोणिनम झाणेनम, सॉरी मोणिनम यानी मौन हो जाना, मन से वचन को मौन करना, और झाणेनम यानी कंप्लीटली मन के अंदर स्थिर होकर हर पल, हर क्षण, प्रति क्षण क्या हो रहा है वर्तमान क्षण में, उसको जानते रहना और जानकर रिएक्ट नहीं करना। अब जो हो रहा है प्रेजेंट मोमेंट में, कुछ हो रहा है, तुरंत मन क्या करता है, उसका विश्लेषण करता है, उसको जज करता है, अच्छा हुआ बुरा हुआ, अच्छा हुआ बुरा हुआ। अच्छा हुआ तुरंत राग जगाता है, बुरा हुआ तुरंत द्वेष जगाता है। तो क्या कर रहे हैं, समता भाव कहाँ है, समता भाव यानी न राग हो न द्वेष। उस मोमेंट में जो कुछ भी घटना घट रही है, उस घटना में हमको अटैच नहीं होना है, डिटैच रहना है। अटैच हो गए
तो विश्लेषण शुरू हो गया। अटैच होते ही क्या हुआ, जाना, जानते ही हमने जज किया, अच्छा हुआ या बुरा हुआ, अच्छा हुआ बुरा हुआ, जैसे ही जजमेंट किया या तो राग जगाया या तो द्वेष जगाया। समता में कहाँ रह जाएंगे। और सामायिक का मतलब ही ये है कि समता में स्थिर होना। तो अभी आप बोलोगे कि नहीं हो पा रहा है, मतलब हमारा सामायिक नहीं हो रहा है। अरे सामायिक उसकी प्रैक्टिस के लिए है, मतलब अगर हम में समता है तो सामायिक की जरूरत नहीं, सामायिक अपने आप हो गया, अपने आप वो बनने वाली घटना हो गई। हमको करना ही सामायिक इसलिए है कि हम समता में नहीं रह पाते, हम समता में स्थिर नहीं हो पाते हैं, हम बार बार राग द्वेष राग द्वेष राग द्वेष करते ही जा रहे हैं। तो इन राग द्वेष राग द्वेष राग द्वेष के वलन से निकलना है बाहर। जो घटना घट रही है सिर्फ जानना है, अच्छा ये घटना घटी, ठीक है, हो रहा है, हो रहा है, उसको हम जान रहे हैं। अब इसको और एक लेवल पे श्रीमद राजचंद्र जी ने बताया, ना आपको कर्ता होना है ना भोक्ता, सिर्फ दृष्टा बन जाना है। आत्मा छे ते नित्य छे कर्ता निज कर्म, छे भोक्ता वड़ी मोक्ष छे, मोक्ष उपाय सुधर्म रे, आत्मा छू हूं आत्मा छू। बोल रहे हैं कि आप अपने आप को बार बार याद कराएं कि मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं ये मन भी नहीं हूं। ये शरीर जो कर रहा है, ये शरीर अनित्य है, शाश्वत नहीं है। तो मैं ये नहीं हूं, ये नाम, ये पैसा, ये रिश्ते, ये सब कुछ मैं नहीं हूं। जब शरीर ही मैं नहीं हूं तो इसके रिश्ते कैसे मैं हो सकता है या मेरा हो सकता है, कैसे हो सकता है। बोलने के लिए संसार में बोलते हैं ये मेरी बेटी, मेरा बेटा, मेरे पिता, मेरे माता, ये सब हम बोलते हैं, लेकिन ये सब कुछ मेरा नहीं है जब हम समझते हैं आत्मिक तौर पे। तो उन्होंने कहा कि ये मेरा नहीं है, लेकिन हम जैसे ही मैं और मेरा का भाव करते हैं, हम क्या बन जाते हैं, कर्ता भाव में आ जाते हैं। तो कर्म का बंधन करना शुरू करते हैं, मैं मेरा इसका चिपकाव। और ये कर्म का बंधन ये करवाता कौन है, शरीर नहीं करता, मन करता है वो। तो जो नित्य शाश्वत ध्रुव आत्मा है वो तो शुद्ध परिशुद्ध है, लेकिन शरीर और मन के, शरीर और आत्मा के बीच जो मन है ना, ये मन के अंदर ये सारा खेला चलता है और वो कर्ता भाव भोक्ता भाव, कर्ता भाव भोक्ता भाव में आता है। तो संवर और निर्जरा दोनों नहीं हो रहे, बार बार कर्मों का बंधन होता जा रहा है, होता जा रहा है, उसको हमें रोकना है। अब इसको कैसे रोके, तो हमको ये सारे बताए गए कि सामायिक, पहले सामायिक यानी समता भाव में आओ, फिर प्रतिक्रमण करो। प्रतिक्रमण यानी क्या, जो सूत्र बोल जाते हैं और एक कुछ क्रियाएं करते हैं वो प्रतिक्रमण। तो जैन शास्त्र कहता है हर साधना 3 प्रकार से होती है, जघन्य, मध्यम और उत्तम। जघन्य यानी साधना शुरू हुई, लोएस्ट लेवल पे शुरू हुई, वो जघन्य। कुछ नहीं करने से जघन्य लेवल की साधना करना भी उत्तम है हमारे लिए। तो मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही हूं कि आपको ये जघन्य लेवल की साधना नहीं करनी है, शुरुआत वहीं से होती है। लेकिन ये मनुष्य जन्म मिलने के बाद, इतना कुछ हमको शास्त्रों का ज्ञान मिलने के बाद, हम जघन्य से संतोष कैसे कर सकते हैं। अगर मोक्ष आपका टारगेट है तो आपको जघन्य से ऊपर उठना होगा मध्यम, और मध्यम से ऊपर उठकर उत्तम में जाना होगा। तो एक होता है जघन्य लेवल, जहां हम कटाशा लेके बैठ गए, कोई कुछ बोल रहा है लेकिन हमारा मन भटक रहा है, हम कुछ इसमें इन्वॉल्व भी नहीं हो रहे, जघन्य लेवल का प्रतिक्रमण। मध्यम लेवल का प्रतिक्रमण का हर सूत्र ध्यान से बोल रहे हैं और उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, हर क्रिया को बहुत प्रॉपरली कर रहे हैं, तो मध्यम लेवल का हो।
अभी भी उत्तम नहीं है। उत्तम तब होगा जब आपका 100% मन इन्वॉल्व होने लगे। 100% से शुरुआत नहीं होगी, 1% से शुरुआत होगी, लेकिन फिर भी आपने उत्तम में प्रवेश किया, आपका मन इन्वॉल्व होने लगे। और अब सुनिए ध्यान से, प्रतिक्रमण यानी वापस लौटना। वापस लौटना, कहाँ वापस लौटना, कहाँ वापस लौटना है हमें? तो कहते हैं आत्मा का मूल स्वभाव क्या है? अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत चारित्र आत्मा का मूल स्वभाव है। इस मूल स्वभाव से हटकर मैंने जो जो किया, अनंत शक्ति, अनंत प्रेम, अनंत आनंद भी आत्मा का स्वभाव है। उससे हटकर मैंने क्या क्या किया, मतलब आनंद से विपरीत सैडनेस, प्यार से विपरीत विपरीत नफरत में चले गए हम। जहां जहां हमने आत्मा के विपरीत बिहेवियर किया, वहां वहां वापस लौट। तो ये जो सारे सेंटेंसेस हैं, मैंने कहा पहले ही कि जैन धर्म की हर क्रिया एक क्लेंजिंग प्रोसेस है। तो आप जो सूत्र बोलते हैं उसमें कुछ की लाइंस आती हैं। तन्निंदे तंच गरियामी, पड़िकमे देसियम सव्वम, मन वचन कायाए करी मिच्छामी दुक्कड़म। आता है नहीं आता है? 10 મનના 10 વચનના 12 કાયાના એ 32 દોષમાં જે કોઈ दोष लाग्यो है ते सभी हूं मन वचन कायाए करी मिच्छामी दुक्कड़म। बोलते हैं ना ये सारे सेंटेंस प्रतिक्रमण में। उस वक्त आपका मन उसमें है। फिर अतिचार की गाथाएं बोलते हैं हम, तो हर गाथा के एंड में बोलते हैं सूक्ष्म बादर जानता अजानता हुआ है ते सभी हूं मन वचन कायाए करी मिच्छामी दुक्कड़म। यस और नो? अब संवत्सरी के दिन करेंगे, पहले 14 के दिन करेंगे, फिर संवत्सरी के दिन। तो संवत्सरी के दिन जब हम करेंगे तो हम बोलेंगे संवत्सरी दिवस में ही सूक्ष्म बादर जानता अजानता वो हुए ते सभी हूं मैं वचन काय करी मिच्छामी दुक्कड़म। अभी इस सिर्फ इस एक गाथा का अर्थ समझ जाएंगे ना आप, तो आप अपने मन को परो के सारी क्रियाएं कर पाएंगे। ये सब कुछ आपको क्या बोल रहा है? हाँ मुझसे ये पाप हुआ, ये पाप हुआ, ये पाप हुआ, ये पाप हुआ। अतिचार में आप वही तो बोलते हो ना, पहले स्थूल प्राणातिपात, क्या 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 किया हमने। हिंसा कहाँ कहाँ हुई, बीजे स्थूल मूर्छावाद, कहाँ कहाँ मैंने असत्य बोला, त्रिजे स्थूल अदत्ता दान, कहाँ कहाँ मैंने चोरी की। तो बोले अरे भाई हम सब अच्छे घर के लोग हैं, चोरी करेंगे हम? लेकिन जैन शास्त्र चोरी के लिए बहुत सूक्ष्म बातें करता है। हम सब कहाँ कहाँ क्या चुरा लेते हैं हमको पता ही नहीं चलता, बहुत सूक्ष्म बातें करता है। पता नहीं मैं 5 दिनों में ये सब कुछ कितने सूक्ष्म लेवल पर ले जा पाऊंगी, हर चीज का कितना उल्लेख कर पाऊंगी। थोड़ा थोड़ा बताने की कोशिश कर रही हूँ आपको कि ये जो सारे सेंटेंसेस हैं वो सारी क्लेंजिंग प्रोसेसेस है, क्लेंजिंग क्लियरिंग स्टेटमेंट है। तो प्रतिक्रमण जब कर रहे हो पूरी तरह से इन्वॉल्व होके, पूरा सूत्र समझ में नहीं आए तो सोचो कि क्या क्या मैंने मन के पाप किए, मन से मैंने क्या क्या दुर्विचार किए, दुर्भावनाएं की, वचन से मैंने क्या क्या अपशब्द बोले, क्या ऐसे वचन बोले मैंने, और शरीर से मैंने क्या एक्शंस लिए। इन सब के लिए मैं माफी मांगती हूँ। जैसे काफी लोग होपोनोपोनो जानते हैं, होपोनोपोनो में क्या कहते हैं? आई टेक कंप्लीट रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डैश 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 डैश, आई नाउ रिलीज लेट गो एंड चूज लव लाइट एंड हीलिंग, आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, आई थैंक यू, करते हैं ना? ये भी क्लियरिंग स्टेटमेंट है। पूरा अतिचार उसी टाइप का है, पूरा प्रतिक्रमण उसी टाइप का है। हर सूत्र आपको क्लेंजिंग करवाता है, तो पूरे ध्यान से करे। सूत्र का पूरा मीनिंग नहीं समझ में आए तो भी मन के अंदर ये भाव रखे कि हे परमात्मा मैं सब कुछ नहीं जानता हूं, अनजाने में मेरे से बहुत सारे पाप हो रहे हैं, जानते हुए भी कुछ चीजों में कंट्रोल नहीं रहता, जानते हैं
कि हम ये पाप करने जा रहे हैं, इरिटेट हो रहे हैं, फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, गुस्सा हो रहे हैं, पाप करने जा रहे हैं, हो रहा है तब भी जानते हैं। इतनी जागृति अगर आ गई है तो बहुत अच्छा है आपके लिए कि पाप कर्म हो रहा है, तब जानकारी तो रखे कि हो रहा है, कंट्रोल नहीं हो रहा है, हो जाता है, कोई बात नहीं, एटलीस्ट जाने की मुझसे हुआ ही गलत। तो ये सब कब होगा? जब आपके अंदर जागृति हो। सिर्फ आप रिचुअलिस्टिकली, मैकेनिकली सामायिक प्रतिक्रमण कर जाएंगे, जागृति नहीं है वहां पे, सभानता नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, तो भीतर अवेकनिंग कैसे होगी? अवेकनिंग तब होगी जब अवेयरनेस हो ना। तो भाव धर्म मूड ये जो हम करने जा रहे हैं, इसका मूल तात्पर्य यही है कि आप सबको थोड़ा अवेयरनेस कराया जाए और मन गुप्ती, वचन गुप्ती, गाय गुप्ती में लाया जाए। तो अब हम मेडिटेशन करने जा रहे हैं। एवरी डे लास्ट 20 मिनट्स मेडिटेशन करो। 20 मिनट्स का कितना बोलती हूँ 40 मिनट्स हो गए, 45 मिनट्स हो गए, 15 मिनट रह गए हैं हमारे पास। एक मेडिटेशन करेंगे। अब मेडिटेशन में क्या करना है? हमें ये इंटेंशन क्रिएट करना है कि मुझे इस पर्यूषण के 8 दिनों में, जब स्पिरिचुअल एनर्जी वैसे भी बहुत हाई है, ये 8 दिन देखो, एक और बात जानना बहुत जरूरी है आपके लिए। दिन के है ना 3 प्रकार के गुण एक्टिव होते हैं। सुबह 3:30 बजे से 6:30-7 बजे तक सतोगुण एक्टिव होता है, यानी धार्मिक एनर्जीज, स्पिरिचुअल एनर्जीज बहुत हाई होती है। उस वक्त आप जो भी क्रियाएं करते हैं धर्म की, आपको बहुत मल्टीप्लाइड रिजल्ट मिलता है उसका। फिर उसके बाद रजोगुण शुरू होता है, यानी एक्टिविटी शुरू होती है, जीवन की एक्टिव लाइफ शुरू होती है। तो जब एक्टिव लाइफ शुरू हो जाती है ना, तो आप जो भी धर्म क्रिया करते हैं ना, उसका रिजल्ट सतोगुण से 50% हो जाता है। और शाम को, रात को जो क्रियाएं करते हैं ना, वो तमोगुण में आ जाता है। तो वो सारी क्रियाओं का रिजल्ट आपको 25%, 20% ही मिलता है। लेकिन पर्यूषण के ये दिन जो होते हैं, स्पेशली ये श्रावण मास जो चलता है और भादरवा जो चलता है, हर एक रिलीजन में इन 2-3 मासों का बहुत महत्व बताया गया है। क्यों? क्योंकि इन दिनों में सारा दिन सतोगुण एक्टिव रहता है। रजोगुण एक्टिव होने के बावजूद भी सतोगुण एक्टिवेटेड रहता है। तो रात को भी जब आप प्रतिक्रमण करके सो जाते हैं ना, तो तमोगुण एक्टिव नहीं होता है, सतोगुण एक्टिव होता है। इसलिए पर्यूषण में की गई सारे विधि विधान मल्टीप्लाइड रिजल्ट देते हैं। तो ये आपके लिए बहुत पावरफुल एक टूल है, एक क्या बोलते हैं उसको, कि परमात्मा की देन है कि इन दिनों में आप जो क्रियाएं करोगे उसका आपको बहुत मल्टीप्लाइड रिजल्ट मिलने वाला है। और इसीलिए थोड़ा बहुत जो कुछ भी आप करना चाहते हैं, सामायिक प्रतिक्रमण, सेवा, पूजा, कुछ पढ़ना चाहते हैं, सब कुछ करें, लेकिन मेडिटेशन इज द टॉप नॉच। क्योंकि बाह्य तप से अभ्यंतर तप को उत्तम बताया गया। एकाशना, उपवास, जो कुछ भी आप कर रहे हैं, उससे उत्तम अभ्यंतर तप को बताया गया। और अभ्यंतर तप के 6 भेदों में सबसे उत्तम ध्यान और कायोत्सर्ग को बताया गया। तो मेरी कोशिश जरूर रहेगी कि एवरीडे मैं आपको एक मेडिटेशन जरूर कराऊं। तो आज हम मेडिटेशन में इंटेंशन क्रिएट करते हैं कि मुझे पर्यूषण में क्लेंजिंग प्रोसेस में जाना है, मुझे क्लेंजिंग करना है, मुझे अपने मन को साफ करना है, मन वचन काय गुप्ती करना है। ओके, ये इंटेंशन क्रिएट करना है और उससे हम मेडिटेशन करेंगे। चलिए अब मेडिटेशन के लिए तैयार हो जाएं। एक कंफर्टेबल पोस्चर में आए। मेरुदंड सीधा करे, गर्दन सीधी करे, आंखों को कोमलता से बंद और पूरी तरह से अपनी आती जाती सांसों से जुड़ जाएं। सांस भरे, सांस छोड़े।
सांस भरे, सांस छोड़े। सारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपनी सांसों पर रखें। प्रतिक्रमण करने के दौरान जब हम कायोत्सर्ग करते हैं, वो कायोत्सर्ग का सही मतलब है कि अपने सांसों पे ध्यान देना और सांसों द्वारा मन को पूरी तरह से जागृत करते हुए मन से शरीर को छोड़ना, जीते जी काया को छोड़ना। मरने के बाद तो सब कुछ हर कोई छोड़ देता है काया को। ये आर्ट सीखना, ये कला सीखनी है हमें कि जीते जी शरीर को छोड़े, उसे कायोत्सर्ग कहते हैं। तो हमें ध्यान कायोत्सर्ग के लिए पहले सांसों पे ध्यान लेना है, सांसों पे पूरी सजगता से ध्यान लेकर फिर कायोत्सर्ग करना है और उसके बाद ध्यान में उतरना है। पूरी तरह से मन को आपको साधना है। सांसों की माला जपे, सांस आई सांस गई, पूरी जानकारी रखें। लंबी गहरी सांस धीरे धीरे छोड़े। अब आप ध्यान कायोत्सर्ग के लिए तैयार हो। मेरुदंड सीधा, गर्दन सीधी, आंखों को कोमलता से बंद रखे। सारा ध्यान सांसों पर। कायोत्सर्ग के लिए आपको अब अपने मन की आंखों से शरीर को देखना है। शरीर के अंग प्रत्यंग से मन को गुजारना है। मेरी आवाज से जुड़े रहें। आपका पूरा ध्यान दोनों पैरों के अंगूठे की ओर ले जाएं। दोनों पैर के अंगूठे, अंगुलियां, पंजा, एड़ी रिलैक्स होने दे, ढीला छोड़े। पिंडलियां, घुटने, जांघें, कमर के जॉइंट तक ढीली छोड़े। पेट, कमर, पीठ, छाती ढीला छोड़े। कांधों को ढीला छोड़े, हाथों को ढीला छोड़े। गला, सिर का पिछला हिस्सा, ऊपरी हिस्सा ढीला छोड़ते हुए चेहरे पर ध्यान लाए। सारे चेहरे के हर अवयव को ढीला 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 छोड़ दे। दोबारा अपना ध्यान अपने पैरों के अंगूठे की ओर ले जाए। मन ही मन सोचे अब आप कायोत्सर्ग करना चाहते हैं, तो मन को संदेशा दे। अंगूठे छोड़े, अंगुलियां छोड़ी, पंजा छोड़ा, पिंडलियां छोड़ी, घुटने छोड़े, जांघे छोड़ी, कमर के जॉइंट तक कमर छोड़ी, गुप्तंग छोड़े। दोनों पैरों को आपने छोड़ दिया। आपकी सारी प्राण शक्ति
नाभि के पास इकट्ठा होना शुरू हो गई है। सजगता से अब आपको कायोत्सर्ग कंटिन्यू करना है। पेट छोड़ा, छाती छोड़ी, कमर छोड़ी, पीठ छोड़ी, दोनों कांधों को छोड़ दिया, दोनों हाथ छोड़ दिए, हथेलियां अंगुलियां छोड़ी, गला छोड़ा, सिर का पिछला हिस्सा छोड़ा, ऊपरी हिस्सा छोड़ा, चेहरा, चेहरे पे पांचों इंद्रियों को छोड़ना है। आंखें छोड़ी, नाक छोड़ा, कान छोड़े, त्वचा छोड़ी, जिह्वा छोड़ी, चेहरे को छोड़ा। अब जब मैं 3 कहूं, अपने आप को एक शांत जगह पर पाएं। किसी मंदिर, अपाश्रय में देख सकते हैं आप अपने आप को, या अपने घर के कॉर्नर में आप आराम से बैठे हो। 1 2 3। मन के अंदर अब ये भाव पैदा करें कि जीवन जीते जीते मुझसे जो जो गलतियां हुई, जहां जहां मैंने गलत डिसीजंस लिए, गलत एक्शंस लिए, गलत वचन का इस्तेमाल किया और अनंत ही बार गलत विचार किए, गलत भावनाएं की, उन सब के लिए मन, वचन, काया से मिच्छामि दुक्कडम, माफी मांगता हूं मैं। मेरी हर मलिन इच्छाएं, मिथ्या दर्शन, नाश हो, नाश हो, नाश हो। आपकी मेमोरी में अगर कोई भी ऐसा किस्सा याद आ रहा है तो उसके लिए माफी मांगे। जैन शास्त्र कहता है कि गिल्ट राइड में जाने का कोई मतलब नहीं बनता। कितना भी बड़ा पाप हो गया हो आपसे, अगर आप उसका भीतर गिल्ट रखते हैं, अफसोस रखते हैं, तो वो कर्म आपकी निर्जरा नहीं होती, वो कर्म भीतर मल्टीप्लाई होता जाता है, आपसे दोबारा ऐसी चीजें करवाता है। जैन शास्त्र की विधि में प्रतिक्रमण कहता है, जो भी पाप छोटे बड़े कितने भी बड़े हो गए हो, उसके लिए माफी मांगे, उसकी निंदा करे, यानी मन से उसको पूरी तरह से डिसॉल्व करे। निंदामी गरियामी, निंदामी यानी उसको डिसॉल्व करे, गरियामी यानी उसको रिलीज करे, छोड़े। अपाणम वोसिरामी यानी उसको पूरी तरह से रिलीज करते हुए ये पचकाण करे, यानी ये अपने भीतर ये संकल्प करे कि दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे, दोबारा ऐसा पाप कभी नहीं करेंगे, ऐसा कर्म कभी नहीं बांधेंगे। तो आपको गिल्ट में नहीं आना है, अफसोस पकड़ के नहीं रखना है। पहले तो अपने आप को माफ करना है
और इस पाप की निंदामी गरियामी अपाणम बोसिरामी की प्रक्रिया करनी है। अपने शरीर से, अपने मन से, अपनी आभा मंडल से उस कर्म की रज को बाहर की ओर निकाल देना है और अपने आप को प्रॉमिस करना है, ये प्रण लेना है कि ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं करेंगे। इसी बात को मैं तिबारा दोहराने वाली हूं, क्योंकि आपके मन की, अंतर्मन की गहराइयों तक इसे डालना है आपको। आज तक, इस क्षण तक जीवन में जो कोई भी हमसे गलतियां हुई, सूक्ष्म, बादर, यानी बड़े तौर पे जानते हुए हुई, अजानते हुए, छोटी सटल हुई, पता नहीं चला हमको, वैसे हुई, पता चलते हुई, वो सारे पापों को 3 विधि से, यानी त्रिविधे, मन से, अपने विचार और भावनाओं से, वचन से यानी अपने शब्दों से, और काया से यानी अपने कार्यों से, हर तरह से मैं इसे अब निंदामी गरियामी अपाणम बोसिरामी मिच्छामि दुक्कडम मिच्छामि दुक्कडम मिच्छामि दुक्कडम। और प्रॉमिस करे अपने आप को, प्रण ले, पछकाण ले कि ऐसी गलती आज के बाद कभी नहीं दोहराएंगे, ये पाप दोबारा कभी नहीं करेंगे। और इन पापों में ऐसे भी पाप शामिल हैं कि बार बार अपने फ्यूचर की हम चिंता करते रहते हैं, बार बार अपने पास्ट का अफसोस करते रहते हैं, पास्ट में दोबारा जाने की कोशिश करते हैं, फ्यूचर के लिए डर रखते हैं, दुख आए तो मरण की इच्छा करते हैं, सुख आए तो जीवन की इच्छा करते हैं। ये सब कुछ पाप में शामिल है। जैन धर्म बहुत सूक्ष्म बातें करता है, अंतर मन की गहराइयों में सुख आवे जीवितव्य वाच्यु, दुख आवे मरण वाच्यु, यानी जब सब कुछ अच्छा चल रहा है तो जीवन लंबा चले ऐसी इच्छा करना, सब कुछ गलत चल रहा है तो मरण की इच्छा करना, कुछ अच्छा कर्म किया तो उस कर्म के बदले हमको ये फल मिल जाए, वो फल मिल जाए, ऐसी इच्छाएं करना, ये भी पाप में शामिल है। बड़े ध्यान से, किसी प्रकार का अर्थ ध्यान ना करे, रौद्र ध्यान ना करे, इनको भी डिटेल में समझेंगे, जानेंगे आज आगे आगे चलते हुए। मन की, अंतर मन की गहराइयों से प्रतिक्रमण करे, वापस लौटे अपने आत्म स्वभाव में। अपने सोल को प्योरीफाई करें, और सोल प्योरिफिकेशन के लिए माइंड प्योरिफिकेशन करना है। मन को निश्चल निर्मल बनाना है। आज पहला कदम रख रहे हैं, सिर्फ कोशिश कर रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं।
मन गुप्ती, वचन गुप्ती, काय गुप्ती का संकल्प करते हुए कल पूरे दिन सजगता से दिन बिताना है। आज अभी जो अंतर्मन की गहराइयों में डाल रहे हो, कर रहे हो, उसे याद रखना है और दिन दौरान हर कार्य में चौकन्ना रहना है, हर शब्द बोलते हुए चौकन्ना रहना है, हर विचार और भावनाओं की सजगता में रहना है। इस प्रॉमिस के साथ दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ें, अपने शरीर को महसूस करें। दोनों हथेलियों को आंखों पर रख ले 3 बार, उसी के अंदर आंख खोले बंद करे, खोले बंद करे, खोले बंद करे। अब आंख बंद ही रखे, खोलने की जल्दी ना करे। जैन धर्म एक और बात करता है, कहता है अगर आप धर्म का मर्म समझना चाहते हैं, धर्म को अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहते हैं, तो उसका सबसे आसान तरीका है अपने हृदय को हर एक जीव के प्रति अत्यंत करुणा के भाव से भरे, मैत्री के भाव से भरे। तो इस वक्त ऐसा मैत्री भाव पैदा करे कि जैसी ये यात्रा, अंतर यात्रा हमें मिली, हर जीव मात्र को मिले। दोनों हथेलियों को ब्लेसिंग मुद्रा में ले ले और जीव मात्र के प्रति ब्लेसिंग को बहाना है। दोनों हथेलियों को ब्लेसिंग मुद्रा में रखें। जीव मात्र के प्रति मंगल कामना करें। इस जीवन में जो कुछ भी मुझे मिला है, चाहे बाह्य सुख हो या आंतरिक, चाहे परमात्मा के शब्द हो, वाणी हो या आत्मा परमात्मा की समझ, पुण्य पाप की समझ, धर्म का सच्चा रास्ता, ये सब कुछ जीव मात्र को मिल जाए, जीव मात्र को शांति मिले, शाता मिले, जीव मात्र को आत्मा परमात्मा की समझ मिले, सच्चे धर्म का रास्ता मिले। सब इस रास्ते पर चलते हुए अपना कल्याण साधे, अपना मंगल साधे। सभी को सत्य की खोज का रास्ता मिल जाए। सबका मंगल हो, कल्याण हो। इस महामंगलकारी भावना के साथ दोनों हथेलियों को फिर से रगड़े, एनर्जी को पूरे चेहरे पर, गले पर, शोल्डर्स पर, हाथ पर ले। तिबारा ऐसा करते हुए अंग प्रत्यंग से बह जाने दे और यहाँ मौजूद हर एक आत्मा का अनंत अनंत उपकार माने, क्योंकि ये जो सारी समूह की एनर्जी इकट्ठा हुई है, ऊर्जा यहाँ इकट्ठा हुई है, ये आप सबके प्रत्येक इंसान के कंट्रीब्यूशन के कारण है। तो हर एक का शुक्राना करे, हर एक को ब्लेस करे कि सबका मंगल हो और मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ आंख खोले। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं अब थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सबका शुक्राना, सबका शुक्राना, थैंक यू, आभार आप सबका। मैं अनम्यूट करने के लिए आपको अभी अलाउ कर रही हूं। कोई भी कुछ बोलना चाहता है, कुछ पूछना चाहता है तो हैंड रेज करे और फिर बोले। आप सबका बहुत बहुत आभार। कल फिर हम मिलेंगे 9 बजे, एग्जैक्टली एट 9 आई विल ऑन द विल स्टार्ट द सेशन। हाँ अंकल जी,
प्लीज अनम्यूट करें और बोले। आपने हैंड रेज किया है अंकल जी, कुछ बोलना चाहते हैं? किसी को कोई प्रश्न है? I can be here for 5 minutes. I can answer your question. दीपाली, आप कुछ बोलना चाहते हैं? आभार। केतन शाह जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं? आपका हैंड रेज्ड है। सो नो क्वेश्चंस मीन्स मैंने बहुत अच्छा समझाया, आपको सब कुछ एकदम समझ में आ गया, या कुछ भी समझ में नहीं आया? दो में से एक हो सकता है। So I don't know what it is, but I am happy that you all are accompanying me so that I can do this journey. Thank you so much. Thank you, everyone. So I'll end the meeting. Yeah. Thank you. 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 Thank you.